अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सना खान. आई एम चीफ इंस्पिरेशन ऑफिसर एट हॉस्पिटल और आज पॉडकास्ट में एक बहुत मज़ेदार एपिसोड के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. पॉडकास्ट का मकसद सिर्फ किसी एक चीज़, एक स्पेसिफिक टॉपिक को टारगेट करना नहीं है, बल्कि दुनिया भर में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जितने हाई परफॉर्मिंग प्रोफेशनल्स मौजूद हैं जो अपनी अपनी डोमेन में, अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ना सिर्फ अच्छा काम कर रहे हैं बल्कि पॉडकास्ट में हमारे स्टूडियो में आने के लिए एक बहुत बड़ा प्री रिक्विजिट ये है कि दे शुड बी पैशनेट अबाउट देयर वर्क, दे शुड बी पैशनेट अबाउट व्हाट दे डू एंड दे कैन टेल अ स्टोरी. तो ऐसे ही आज एक बहुत ख़ास शख्सियत के साथ हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं. मेरे साथ मौजूद हैं हारून राजा साहब, पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे हम इनको जानते हैं, लेकिन ऑब्वियसली देयर इज़ ऑलवेज अ लॉट मोर टू द स्टोरी. तो इनकी स्टोरी, इनकी मोटिवेशन, इनका जर्नी हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं. थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अच्छा सर, जैसे मैंने कहा कि देयर इज़ ऑलवेज मोर टू द स्टोरी, तो ये फ्रीलांसर एसोसिएशन को देखना, चलाना, उसकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना इज़ वन साइड दैट वी नो. इसके अलावा व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग एंड हाउ डू यू मैनेज इट विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी? जी, for a living I run a cloud technology services company in the US by the name of Happy Cloud. We offer premium fully managed cloud hosting and CRM, marketing automation, integrations with internal systems, and we operate in a couple of niches. Right. Healthcare, gyms, real estate, and so we have a very small remote team working from Pakistan and from all across Pakistan, different areas. There is no office. The only office is my home office. Right. And they just work pretty much autonomously for most part. I intervene when I have to, because we've optimized most of our processes in a way that most things that can be automated have been automated. Right. So whenever there's a client query, the client needs to discuss something with one of the team, then they step in. Mostly things run on autopilot, and then there are some recurring tasks that they have to go in and do, which is something they do on their own schedule. Right, great. तो पैफला के साथ उसे चलाना जो है वो, अगर if I were working full time on पैफला तब तो it wouldn't have been practical at all. लेकिन since founding Pafla with my co-founder Ibrahim Amin Saab, we've been working together, and he's built quite a team because he's more involved in the corporate ecosystem over here. He runs his own business by the name of Delsons Associates. Right. He offers consultancy to financial institutions. He consults for the likes of State Bank and the manufacturing sector. So he's into business, and he already had a team when we started Pafla. Initially, his team volunteered their time to work on Pafla activities as well. But then, as of late, we've hired a CEO, Tufail Ahmed Khan. He comes from Nutshell. He was previously working in Nutshell with Asfar Saab and pretty involved in their events and activities. So he has a very strong background, and he's taking things forward a lot. Ibrahim Saab and I, we are still very much involved as the two primary co-founders, and our third co-founder Fahad, he handles some of the tech side. But Ibrahim Saab and I are very much involved in public appearances, in advocacy, in policy making. But we have a pretty solid team working with us. Great. अच्छा, before I move on to the next question, आपको ये बता दूं कि हारून साहब के इंट्रोडक्शन में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. नंबर वन, he defines himself as somebody who is unconventional. तो हम इसके ऊपर इनसे बात करेंगे कि अनकन्वेंशनल किस सेंस में और क्या क्या कन्वेंशंस तोड़ने के मुर्तकिब हुए. और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये एक स्मार्ट वर्कर है, यानी कि हार्ड वर्क के ऊपर तरजीह देते हैं स्मार्ट वर्क करने को. तो हम ऑब्वियसली, आपको इनकी बातचीत से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ही इज़ रनिंग अ फुल टाइम बिजनेस माशाल्लाह, एंड ही इज़ वेरी मच एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ हैपनिंग अराउंड ई कॉमर्स एंड फ्रीलांसिंग, एंड इट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ वर्क. तो लेकिन उससे पहले ये बताएं हारून साहब कि पैफला का मेन मिशन क्या है पाकिस्तान में? जी, पैफला का जो रीज़न आई फाउंडेड इट, को-फाउंडेड इट विद इब्राहिम साहब, मैंने सन 2000 में फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी. बिफोर आई न्यू व्हाट द टर्म फ्रीलांसिंग मेंट. मेरा ए लेवल्स का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, तो आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू एक्चुअली बिल्ड समथिंग दैट इज इम्प्लीमेंटेड रादर देन जस्ट एन एकेडमिक प्रोजेक्ट दैट achieves nothing other than practice. So I went to some small local shops, local businesses, and one of them hired me. And I was like, पैसे भी मिल रहे हैं, good, why not?
So that was my start. And since then I went into entrepreneurship. I also at times हालात ऐसे थे कि मुझे कुछ टाइम के लिए जॉब भी करनी पड़ी, but it was always temporary. But throughout मैं साथ साथ किसी ना किसी तरह freelancing से वाबस्ता रहा in parallel to whatever I did. And business भी मैंने freelancing की foundation पे ही खड़े किए, उसी से कमा के उन्हीं relationships को यूटिलाइज करते हुए जो मैंने फ्रीलांसिंग करियर में बिल्ड की थी. सो उस दौरान पाकिस्तान में रहते हुए, इस इंतहाई अनफेवरेबल क्लाइमेट में रहते हुए, मैंने वो तमाम जो हर्डल्स जो एक फ्रीलांसर फेस कर सकता है, यू नेम इट, वो मैंने एट वन पॉइंट और द अदर फेस किए. पेमेंट हर्डल्स, रेगुलेटरी हर्डल्स, एंड उसके अलावा कनेक्टिविटी हर्डल्स एंड सोशल एक्सेप्टेबिलिटी हर्डल्स. हाँ, ये तो सबसे बड़ा है, आई थिंक overshadows everything. Oh yes. Right. So उस मामले में तो चीज़ें सबसे ज़्यादा बेहतर हो चुकी हैं by now. But back then people just couldn't fathom the fact that you're working online and making money. I'm talking early 2000s. हाँ obviously बड़ा alien concept था तब तो. So वो तमाम resistances face करके, वो तमाम hurdles face करके जब किसी ऐसे लेवल पे पहुंचा where I was doing fine, तो वो जहन में एक ख्याल आया कि those who are still facing these hurdles, one should do something to try कि अगर आपने जो मुश्किलात जिन मुश्किलात का सामना किया, अगर आपसे अगली नस्ल भी वही मुश्किलात देखती है, उन्हीं का सामना करती है, तो आपने ज़िंदगी में क्या किया. So, हर नस्ल की एक जिम्मेदारी है कि वो अपनी अगली नस्ल के लिए हालात पहले से बेहतर बनाए, उन मुश्किलात में से एटलीस्ट कुछ को वो हल कर दे ताकि उन्हें वो फेस ना करना पड़े. तो दैट वाज द रीज़न वी बिल्ट पाफला, एंड आई थिंक दैट एक्सप्लेन्स द पर्पस एज वेल. लेकिन टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट इट्स मिशन स्टेटमेंट, मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं याद, मैंने ही लिखी है, बट टू गिव you the gist of it, we aim to work with the government, the regulators, public and private, and the industry at large, financial institutions very specifically, but industry at large, academia and existing freelancers, to all kinds of stakeholders. You're putting them on one table. Yes, so bringing them all together, हमारे बोर्ड पे भी इन तमाम से representation है, so that we can work across all domains to identify and resolve any issues that freelancers face that keep them from utilizing their full potential and bringing in as much revenue as they possibly can, building Pakistan's image globally as a reliable source of freelance talent. Right. And then also not just limiting it to freelancing, then identifying the right ones among them to mentor them into taking it further, to build their own agencies, to build their software houses, to graduate from likes of Pafla into the likes of Pasha. Right. And to build their own startups. Right. Build their own products and services, rather than productized services, rather than just आप वो hourly rate पे काम कर रहे हैं या पर project काम कर रहे हैं. Build products that can keep selling while you sleep. So all of that is a part of our mission as well. That's very great. और एंड आई रियली होप कि पाकिस्तान में ये चीज़ें हम देखें अपनी ज़िंदगी में, इंशाल्लाह ताला दैट वुड ओनली बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव्स बाय पीपल लाइक यू. एंड हारून साहब वाज आल्सो टेलिंग मी दैट the job that he does for a living is from the happy cloud thing, because Pafla जो है इसमें उनके अपने पैसे लग रहे होते हैं एक्टिविटीज़ में, so he is not getting any financial gain from it. लेकिन ये बात मैं इसलिए मेंशन करी हूँ बिकॉज फ्रीलांसिंग की और ई-कॉमर्स की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में सबसे पहला ख्याल ये आता है कि शॉर्टकट मनी है, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसे डॉलर्स में पाउंड्स में हम कमाना शुरू कर देंगे. तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये पॉइंट मेक करना चाहती हूँ कि पैसा और शोहरत और इज़्ज़त उससे एसोसिएटेड बाय प्रोडक्ट है प्रोसेस का, वो आनी ही आनी है. लेकिन जो फोकस करने की चीज़ है वो आपकी मंजिल नहीं है. फोकस करने की चीज़ है आपका जर्नी, आपका पाथवे, कि आप उस जर्नी में क्या क्या सीख के कहाँ कहाँ प्रोसेस में पहुँचते हो. हारून साहब वुड एग्री विद मी. हारून साहब, गिवन द स्टेटमेंट दैट आई हैव जस्ट गिवन, सक्सेस को आप कैसे देखते हैं? आपके नज़दीक क्या है सक्सेस? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो सक्सेस की हर बंदे की अपनी यूजुअल डेफिनेशंस होती हैं. किसी को दौलत चाहिए, उसके लिए जो वो इसका एक टारगेट है कि मैंने इतनी दौलत कमा ली तो मैं सक्सेसफुल हूँ.
किसी को शोहरत चाहिए कि जब मुझे इतने लोग जानना शुरू हो जाएं तो मैं सक्सेसफुल हूँ. इज्जत तो खैर सबको चाहिए. जिसे इज्जत नहीं चाहिए वो आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग विद देयर लाइव्स. एग्जैक्टली. तो और उसके अलावा स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं कि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को इस पर्टिकुलर स्केल पे पहुंचा दिया तो मैं सक्सेसफुल हूँ, या मैं इतने टाइम पे रिटायर हो गया तो मैं सक्सेसफुल हूँ. तो ये सब रिलेटिव है. लेकिन अगर इसे एक ब्रॉडर लेवल पे देखा जाए तो बियॉन्ड योर ओन लाइफ गोल्स, इफ यू हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मैनकाइंड, मेरे नज़दीक आपकी सक्सेस ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी से दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हुई हैं तो आप एक कामयाब इंसान हैं. अदरवाइज़ अपने लिए आपने पूरी ज़िंदगी जितना कमा लिया, अगर उसका इम्पैक्ट दूसरे लोगों पे नहीं हो सका तो आप एटलीस्ट मैं आपको उस हद तक कामयाब इंसान की हैसियत से नहीं देखूंगा. नॉट दैट इट्स अ प्रॉब्लम, नॉट एवरीवन कैन गो अहेड एंड क्रिएट अ मैसिव इम्पैक्ट, लेकिन कोशिश करने से ही यू गेट टू सी के वेदर यू वुड बी एबल टू डू इट और नॉट. अक्सर लोग कोशिश नहीं करते, उन्हें मैं इनकरेज करूंगा कि वो सिलसिले में कोशिश ज़रूर करें. बिल्कुल ठीक है, फ़ायदा वही है जो सबका हो. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, सक्सेस तो रिलेटिव है ही, फेलियर इज़ ऑल्सो वेरी रिलेटिव कॉन्सेप्ट. तो आई एम श्योर आपके जितना भी प्रोफेशनल या पर्सनल जर्नी भी है उसमें बहुत ज़्यादा रोड ब्लॉक्स, चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आई होंगी जिन्होंने सेटबैक्स के तौर पे आपको रोका होगा या समटाइम्स मे बी इवन डीमोटिवेट किया फॉर अ लिटिल वाइल. तो फेलियर को कैसे टैकल करना चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा. मुझे तकरीबन 3-4 कंपनीज तो मैंने बना के खुद बंद की हैं. अच्छा. आई फेल्ड इन अ फ्यू स्टार्टअप्स. सम एट आइडिया स्टेज भी ऐसे तो वो तो चीज़ें फेल होती रहती हैं. एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते ही पता चला नहीं. और सम हर्डल, वन हर्डल और द अदर केम अप. कहीं रेगुलेटरी हर्डल्स, फाइनेंशियल हर्डल्स. सो बट व्हाट मैटर्स इज द टेक अवे फ्रॉम इट. अगर आपने फेलियर से लेसन लेके उस लेसन को, उस लर्निंग, उस एक्सपीरियंस को इनकॉर्पोरेट किया इन वॉट एवर यू आर डूइंग नेक्स्ट, तो इट वॉजंट अ फेलियर, इट वॉज अ लेसन, इट वॉज अ सक्सेस. एंड बट अगर आपने उस फेलियर से अपने आप को यू अलाउड इट टू ब्रिंग यू डाउन एंड यू लाइक यू गॉट दैट माइंडसेट के ये नहीं हुआ तो अब मैं कुछ करने के काबिल नहीं रहा, मेरा सब कुछ उजड़ गया, इस पे मैंने अपनी पूरी लाइफ बेस की हुई थी. आपने उसे अपना एक हिस्सा ऐसा बना लिया कि उसमें फेल करना आपको अपनी ज़ात का फेलियर लगा, बजाय इसके कि उसे एक एग्जैक्टली बजाय इसके कि आपकी उसे एक एफर्ट का फेलियर, आप उसे अपनी ज़ात का फेलियर समझ बैठे, तो तब आप हकीकी तौर पे फेल होते हैं. हाँ, दैट्स गुड. अच्छा, ये बात मेरा ख्याल है पहले भी किसी पॉडकास्ट में किसी और इंडस्ट्री गुरु ने भी की थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप फेलियर को पर्सनल ना लें. फेलियर को एक लर्निंग कॉस्ट के तौर पे अगर लेंगे तो उसका हिट भी थोड़ा लगेगा, आपको कुशन हो जाएगा ब्लो, और उसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो आप नेक्स्ट करने जा रहे हैं उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी है. बिकॉज़ सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, नॉट जस्ट फेलियर. आप जिंदगी में किसी भी चीज़ को जो जनरली हम बड़े पैशनेट हो के उन चीज़ों को अपने साथ इस तरह एसोसिएट कर लेते हैं कि हम उन्हें अपना एक हिस्सा बना लेते हैं. तो कोई भी कौन सी, इवन एन आइडियोलॉजी, अ प्रैक्टिस, अ बिलीफ, अ वेंचर, उसे आप अपना हिस्सा इस तरह से अगर बनाएंगे कि उसकी नाकामी आपको अपनी ज़ात की नाकामी लगेगी तो यू आर डूइंग इट रॉन्ग. आपको हमेशा हर चीज़ में ओपन टू ऑप्शंस भी रहना चाहिए. इफ़ यू हैव अ पर्टिकुलर बिलीफ, लेट्स से someone criticizes that belief and you decide के ओ ये मुझे criticize किया जा रहा है, नहीं, your belief and you are separate entities. You as an individual are an extremely flexible entity if you allow yourself to be. Right. ये वैसे बहुत अच्छी pep talk थी जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में 99% of the times 99% ऑफ द पीपल को सुनने की ज़रूरत है कि एक तो सेंसिटिविटी और अवेयरनेस के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको प्रोसेस में रोकती नहीं है बल्कि आगे जाने में हेल्प करती है, दैट इज़ एक्सेप्टेंस एंड दैट इज़ रियलाइजेशन ऑफ हु यू आर एंड हु यू वांट टू बी. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम अपने ऊपर सवार करके उनको अपना हिस्सा समझना शुरू कर देते हैं, अगर आप उसको एज अ थर्ड पार्टी देखेंगे तो वो चीज़ें उतनी ज़्यादा गंभीर नहीं लगेंगी, मेरा ख्याल है. अच्छा, आखिरी सवाल हारून साहब, ऑल्दो के पैफला को लेके और फ्रीलांसिंग को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, लेकिन हमारा टाइम बहुत लिमिटेड होता है ताकि लोग तवज्जो से सुन लें. तो आखिरी सवाल प्लीज़ मुझे ये बताएं कि फ्रीलांसर्स या ई कॉमर्स के लोग या इवन ट्रेडिशनल कॉमर्स के लोग स्टार्टअप्स में आने के लिए जो एस्पायर कर रहे हैं, किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं या इवन जॉब्स भी करना चाहते हैं, पढ़ने की आदत, बुक रीडिंग की आदत एक ऐसी आदत है जो हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मफतूद हो चुकी है. इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, इससे फ़ायदा क्या होगा, इसके लिए कोई एक रिकमेंडेशन दें.
जी, इसमें ज़रूर इंटरेस्ट लेना चाहिए। अगर आप अपने आप को इस तरह से इंटेलेक्चुअली अपग्रेड नहीं करते रहते तो आपको तो जंग लग जाना है, आप बहुत जल्दी इररेलेवेंट हो जाने, स्पेशली इन दिस डे एंड एज। तो अब वो टाइम आजकल नहीं रहा जब ह्यूज वॉल्यूम्स जो हैं वो बुक्स के वो लोग अपनी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ पाते थे, बिकॉज लाइफ इतनी फास्ट पेस हो चुकी है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप उन्हें निगलेक्ट कर सकें। आपको सक्सीड करने के लिए दूसरे लोगों के नॉलेज से, उनके विजडम से सीखना पड़ता है। उसके लिए बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए एक मेरी टिप है, उस सर्विस का मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, बट if you search it you'll find it. There's a service that summarizes very important books into much more easily consumable, digestible chunks. audio Exactly. हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। वो उस तरह की I think multiple services There are हैं। multiple services like that. So, उन सर्विसेज को यूटिलाइज करके आप बुक्स को जल्दी भी और आते जाते ऑडियो बुक के फॉर्मेट में सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। पढ़ने के लिए भी उन्होंने उन्हें समराइज किया हुआ है, एंड देयर आर एक्चुअली प्रॉपर्ली प्रोफेशनली क्रिएटेड समरीज। Oh yes, oh yes. So उस वजह से definitely. that's going to be a bit of a life hack that you could do to be able to continue reading books. बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द टिप एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर सर। एक्चुअली पॉडकास्ट करने का हमारा मकसद भी यही है कि यहाँ पे हम जीती जागती किताबें आपके सामने ला के बिठा रहे हैं, ताकि आप उनके लाइफ एक्सपीरियंस से सीखें। ये सीखें कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, और ये भी सीखें कि कौन सी चीज़ में क्या चीज़ अवॉइड करनी है, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये तो सीखते रहते हैं कि ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, XYZ चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन हम उसी प्रोसेस में ये भूल जाते हैं कि ये वो चीज़ है जहाँ पे आपको नहीं जाना, ये वो गलती है जो आपने नहीं करनी। और ज़रूरी नहीं है कि हम अपने तजर्बे से गुजर के सीखें। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत प्रोडक्टिव बात है कि हम ऐसे लोगों को आपके सामने ला रहे हैं जो वो तजर्बा कर चुके हैं, वो गुजर चुके हैं वहाँ से, बिन देयर डन दैट एंड ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट। आप उनके एक्सपीरियंस से सीखें, अपनी लर्निंग कॉस्ट कम करें और ज़िंदगी में ज़रूर प्रोडक्टिव होने की कोशिश करें, दूसरों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करें। आपने इस पॉडकास्ट से क्या सीखा? हारून साहब का कौन सा काम आपको सबसे ज़्यादा किस बात ने मुतासिर किया? इनकी बुक रीडिंग की टिप को आपने कितना फॉलो किया? कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।